नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल TSMG लर्निंग पॉइंट में। और आज हम हिंदी मीडियम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के यूनिट 4 के लेसन नंबर 1 द वर्ल्ड इज़ माइन के साथ आपके सामने हैं दोस्तों। इस कविता का खूबसूरत एक्सप्लेनेशन आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कविता के सफ़र पर चलते हैं और समझते हैं कि ये विश्व मेरा क्यों है। द वर्ल्ड इज़ माइन। टुडे ऑन अ बस आई सॉ अ लवली गर्ल विथ अ सिल्कन हेयर। आई envied her, she seemed so gay. I wished I was so fair. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the alley. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 legs, the world is mine. So friends, in the first stanza of the poem, the poet is saying when he was traveling with a bus, he saw a beautiful girl with silken hair and he invaded her, a jealous type of feeling, and he thought that I must be so fair. He wished I must so fair, and suddenly the girl rose from his seat to leave, and what he have saw. The poet saw that the girl do not have 2 legs, and he prayed to the God, oh God, forgive me when I whine. जब कभी भी whine here, complaining in crying tone. Friends, we always complain to the God that I do not have this, I do not have this, I am not good, I am not good. So after seeing the girl, the beautiful girl, and the beautiful girl without 2 legs, the poet thanks the God and said, forgive me for my mistake, I have 2 legs, the world is mine. यहाँ पर दोस्तों, जब उन्होंने बस में उस लड़की को देखा और जब लड़की में ये देखा कि उसके दोनों पैर नहीं है, तो लेखक को अपनी भूल का सुधार करने की कोशिश की उन्होंने कि मैं हमेशा भगवान के सामने रोता हूँ कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आज इतनी खूबसूरत लड़की है लेकिन उसके पास पैर नहीं है। तो अगर मेरे पास 2 पैर दिया है भगवान ने तो बहुत अच्छा किया है। द वर्ल्ड इज़ माइन। एंड देन आई स्टॉप्ड टू बाई सम स्वीट्स। सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम फ्रेंड्स। एंड देन आई स्टॉप टू बाई सम स्वीट। द लेड who sold them had such charm. I talked with him, she seemed so calm, and if I were late, it would do no harm. And as I left, he said to me, I thank you, you have been so kind. It is nice to talk with the flocks like you. You see, I am blind. Oh God, when I whine, I have 2 eyes, the world is mine. In the second stanza of the poem, here a charming boy who was holding the sweet, and the poet stopped to buy that sweet, and what he saw that such a charm person do not have eyes. And the lad was thanking to the poet how kind the poet was to him because he was a blind. Then once again the poet thanks to the God and said, oh God, forgive me for my mistake when I started crying in front of you. I have 2 eyes, the world is mine. Friends, दूसरे स्टैंजा में दोस्तों हिंदी में मतलब समझते हैं। यहाँ पर जब वो स्वीट की दुकान पर रुके तो वहाँ का जो मालिक था, जो बेचने वाला था, जो सेलर, वो अंधा था दोस्तों। जैसे उन्होंने देखा, उससे बातचीत की, वो देखने में तो बड़ा ही चार्मिंग, बड़ा ही प्यारा था, लेकिन वो अंधा था दोस्तों। तो इन्होंने ईश्वर से क्षमा मांगी कि मुझे मेरी भूल के लिए माफ़ करें, मेरे पास 2 आँखें हैं। द वर्ल्ड इज़ माइन। Coming to the third paragraph, friends, third stanza of the poem,
Later, walking down the street, I saw a child with eyes of blue. फिर जब वो कुछ आगे चलने की कोशिश करते हैं, when he started walking down the street, he saw a boy, sorry friends, he saw a boy or a child, small child with blue eyes. He stood and watched the other place. It seemed he knew not what to do. He always stood on a place and watched others to play because he don't know what to do. I stopped a moment and I said, "Why don't you join the other deer?" The poet stopped there at that moment and said that at least go and join the boy which are playing. He looked ahead without a word, and then I knew he could not hear. And when the poet suggested him to go and play with the other, he looked up without any word, and the poet come to know that the boy cannot hear. Once again the poet understand and said the God, "O God, forgive me when I whine. I have 2 years, the world is mine." थर्ड स्टेंजा में दोस्तों एक बच्चा जब वो स्ट्रीट से चलते हुए जा रहे, रास्ते से नीचे उतरे तो उन्होंने एक लड़का देखा, चाइल्ड, जो कि ब्लू आइज के साथ था, लेकिन वो रुका हुआ एक जगह पर बैठा हुआ था और इन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि क्यों बैठे हुए हो, आप जाइए इनके साथ खेलिए। जैसे उन्होंने कहा तो वो लड़के ने टच करके इन्होंने कहा तो लड़के ने जो है ऊपर देखा और उस लड़के के पास कोई शब्द नहीं था, ही डोंट न्यू। तो इनको पता चला कि ही डू नॉट हियर, वो सुन नहीं सकता। तुरंत लेखक को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने ईश्वर से क्षमा मांगी। ओ गॉड, फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, आई हैव 2 years, द वर्ल्ड इज माइन। कमिंग टू द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम फ्रेंड्स, with the leg to take me where I will go, with the eyes to see the sunset's glow, with the ears to what I would know. O God, forgive me, I whine. I am blessed indeed, the world is mine. In the last paragraph, last stanza of this poem, the poet is trying to conclude all the things happen in his life on that day. And he said that I am very lucky God. I have 2 legs to walk. I have 2 eyes to see the sunset, the beautiful scenario of this world. I have 2 ears to hear what I could know. Oh God, forgive me when I whine. जब कभी भी मैं रोता हूँ, आपके सामने कंप्लेन करता हूँ, तो मुझे क्षमा करना। I am blessed. मुझे तो आपने आशीर्वाद पहले ही दिया है। Indeed, the world is mine. दोस्तों, पूरी कविता में कविता का सारांश करते हुए आखिरी जो पद है उन्होंने लिखा और इसमें उन्होंने कहा कि ईश्वर मुझे क्षमा करना जब कभी भी मैं आपसे कंप्लेन करता हूँ, आपसे शिकायत करता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 पैर है जिन पैरों से मैं चल सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ये 2 पैर नहीं है। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास ये 2 पैर है। फिर वो कहते हैं कि मेरे पास 2 आँखें हैं, इन आँखों से मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा सनसेट देख सकता हूँ, सनराइज़ देख सकता हूँ, अलग अलग सीनरीज देख सकता हूँ, लेकिन इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आँखें नहीं है, वो ये सुंदर नज़ारा देख नहीं सकते। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास 2 आँखें हैं। फिर तीसरे कथन में वो कहते हैं विद द ईयर्स टू हियर व्हाट आई वुड नो, जो चाहूँ मैं वो सुन सकता हूँ और जहाँ चाहूँ जैसे चाहूँ वैसे सुन सकता हूँ, लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास कान नहीं है सुनने के लिए, लेकिन मेरे पास दोनों कान हैं जिससे मैं सुन सकता हूँ। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ये भगवान, जब भी मैं कभी आपसे कंप्लेन करता हूँ तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे ब्लेस्ड इंसान हूँ, खुशनसीब इंसान हूँ, क्योंकि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं
जिससे मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, और दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ कमी है। तो इस कविता के माध्यम से लेखक जॉय लोवलेट हमें यही सीख देना चाहते हैं कि इस दुनिया में आपको जो मिला है उसमें खुश रहने की कोशिश करें और उसका इस्तेमाल करें, और ये ना सोचें कि हमें ये नहीं मिला है। हमें जो कुछ मिला है वो बहुत है, उसे ईश्वर ने दिया है हमारे लिए, हम उसका उपयोग करें, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास शायद वो नहीं है। तो इसीलिए जो हमें मिला है उसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, और जो नहीं मिला है ऐसा हमें अगर लगता है तो उसे के लिए हमें ईश्वर को ब्लेम नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी हमें ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, द वर्ल्ड इज़ माइन बहुत ही सुंदर कविता समाप्त होती है। आई होप आपको हमारी ये कविता और ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि स्टूडेंट्स के मन में ये भावना जगे कि उन्हें जो कुछ मिला है दैट इज़ इनफ, एंड उसी के साथ हमें जीवन में जीना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल TSMG Learning Point. Please like and subscribe our channel and share as much as possible. Thank you.